गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम दो टॉपिक डील करेंगे, बोटेनिकल गार्डन एंड प्लांट क्लासिफिकेशन। बोटेनिकल गार्डन एक ऐसा स्थान है जहाँ हम बेसिकली रिक्रिएशन के लिए और एस्पेक्ट के लिए बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं एक ही जगह। हमारे कॉलेज में भी एक छोटा सा बोटेनिकल गार्डन है, कुछ प्लांट्स उसमें भी हैं। यदि आपको बड़े लेवल पर बोटेनिकल गार्डन देखना है तो लखनऊ जाना पड़ेगा। लखनऊ में NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हजरतगंज से राणा प्रताप मार्ग पर है विश्वविद्यालय की तरफ, तो वहां पे आपको हर तरह के प्लांट लगेंगे। वो मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, कैक्टस भी हैं, लाइकन्स भी हैं, और लगभग पूरे हिंदुस्तान के जो महत्वपूर्ण प्लांट हैं वो वहां पे देखने को मिलेंगे। Now, what is botanical garden? Botanical garden, also called botanic garden, originally a collection of living plants designed chiefly or mainly to illustrate relationship within plant groups. It may be a collection in its own right or a part of a botanical garden. कई बार यही होता है, जैसे हम लोग, हमारे पास बहुत सारी जगह है घर पे, तो एक प्रकार से हम भी एक छोटा सा बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं घर में, तो वो बहुत ही छोटे लेवल पे हो गया। The botanical garden is a controlled and staffed institution, मतलब स्टाफ मिलेगा आपको, for the maintenance of a living collection of plants under scientific management for purposes of education and research, together with such libraries, hub area, laboratories, and also museums as are essential to its particular undertakings. ये चेन्नई का मद्रास का बोटेनिकल गार्डन का मेन गेट दिखाया हुआ है, आप कभी साउथ जाए वहां देखिएगा। इसी तरह लाल बाग बेंगलोर में है, बहुत खूबसूरत। What is the difference between an arboretum and a botanical garden? If the definition of tree include all woody plants, then arboretum may also include shrubs and vines. Vines माने बेलें। In contrast, a botanical garden typically exhibits a wide range of plants. So this is the basic difference between arboretum and botanical garden. This is the very famous botanical garden of the Bangalore, commonly known as Lal Bagh Botanical Garden. How much is the botanical garden for visitors? All garden pass price for weekdays, जैसे कहने का मतलब है कुछ ना कुछ फीस लगेगी वहां पे, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। Which is the largest botanical garden in the world? That is, Kew Garden is the world's largest collection of living plants. यूनाइटेड किंगडम में है, ब्रिटेन में है, और यहाँ पे आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि वो सारे प्लांट्स भी रखे हुए हैं जो केरलस लिनियस के द्वारा कलेक्ट किए गए थे। तो कभी आपको विदेश में जाने का मौका मिले तो क्यू जरूर घूम के आइएगा, यूके जाने का मौका मिले। How is the botanical garden useful for scientists? A new organism found can be studied while comparing it with the living plants and animals living in the protective areas like botanical garden, zoological parks, etc. Botanical garden helps in conservation of plants by growing important local plant species and keeping record of them. An arboretum
or arboreta is a general sense is a particular collection mainly composed of exclusively of trees, मतलब वुडी प्लांट्स होते हैं वहां पर, तो यही आपका बेसिक डिफरेंस है. मोर कॉमनली a modern arboretum is a botanical garden containing living collection of woody plants and is intended at least in part for scientific study. These are some of the important newses about the botanical garden. These are some of the pictures of the botanical garden. This is cactus garden. This is open one. This is a large glass house as a greenhouse. So these are the part of the botanical garden. आप चाहते हैं दुनिया में बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन के बारे में देखना, तो बहुत सारी ये लिंक्स हैं, आप इनके द्वारा उन बॉटनिकल गार्डन के बारे में जानकारी ले सकते हैं. So this is all about the botanical garden. अब सेकेंड पार्ट है प्लांट क्लासिफिकेशन और प्लांट टेक्सोनॉमी. तो बहुत सारी चीजों को फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे. टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी और डिस्क्रिप्शन ऑन वेरिएशंस माने विभिन्नता, differences among organisms in order to come out with a classification system. Organisms that are arranged into a group, जैसे families में, orders में, enable a large population to be categorized and understood. So taxonomy begins about 300 years before Christ by father of botany, Theophrastus. Then come to the work of the Carolus Linnaeus, is regarded as the founder of the taxonomy or father of taxonomy till today. Now, importance of plant taxonomy. वो हमारे लिए क्यों जरूरी है plant taxonomy? To arrange elements or taxa of plants into a more systematic manner so that they can be better understood and could be used easily and more effectively. Second, the arranged data, जो भी आपने किसी particular classification के हिसाब से किया है, जैसे बेंथमन होकर, or information and knowledge about plants to indicate the source and genetic relationship. It may be phylogenetic, मतलब evolutionary aspect उसमें include हो सकता है. दूसरा ancestry, उस पौधे के वंशज कौन रहे होंगे, and also the origin of plants. Also to indicate the distribution and habitat of the plants on earth and their benefits. Now taxonomic components, जैसे पहले वाले लेक्चर में भी बताया गया था, पहला important component है classification. Plants are arranged into particular groups of similar characteristics. The groups are considered as categories or taxa and form the taxonomic system. दूसरा पार्ट है आइडेंटिफिकेशन. जो भी पौधा हम लाते हैं हर्बेरियम के रूप में या दूसरे रूप में, वो हमको पहचानना है. That is to identify and derive the name of an organism or plant by referring to an existing classification. फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका नामकरण. To provide a particular scientific name or botanical name to an organism or plant. Then describe or description. जब ये सारा हो गया फिर हम उसको describe करेंगे. Habit, habitat, vegetative characters, reproductive characters, floral formula, floral diagram,
an economic importance of either the family or the genus to describe the characteristics of a taxon. This is the common way of classifying or arranging the plant kingdom. First division, then class, then order, then family, then genus, then species. और मैंने थोड़ा और भी आपको बताया था कि अब हम स्पीसीज के बाद भी वेराइटी का भी नाम लिख सकते हैं, उसको VAR बोला जाता है, वेराइटल नेम। वो सिस्टम कहलाता है ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट इज द किंगडम, द हाईएस्ट लेवल इन क्लासिफिकेशन, maybe in animal and plant kingdom. Then division, the number of groups in this taxon is not fixed, depends on the classification system based on similar characteristics observed on a few elements or organs. For example, dominance of a sporophyte to a gametophyte. It may be presence of an ovule, seed formation, and several other morphological and anatomical characteristic features. Those are hereditary characteristics and will continue to exist from generation to generation. फिर उसके बाद आती है class. That is, the number of groups in this taxon is also fixed, depending on the classification system. Then order, separation is based on a more convincing genetic relationship, which earlier had been detected at the class and division level. Then family, based on more characteristics compared to order, class, and division. The genus, which involves more similar characteristics, including a closer family relationship. It may be phytogenetically, new genus arises and separate from the same parental origin. यदि evolution की बात हम कर रहे हैं तो अब थोड़ा किंगडम के बारे में, जो कि आपको शुरुआती दौर में वाइटेकर ने मोनेरा किंगडम बनाया था, इसमें बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स को रखा गया था। देन प्रोटिस्टा, जिसमें एल्गी, प्रोटोजोआ एंड यूकैरियोट, देन फंजाई, देन प्लांटी और एनिमेलिया। तो यहाँ पे हमको केवल प्लांटी के बारे में डिस्कस करना है। प्लांट किंगडम में जो डिवीजन हम पढ़ते हैं वो है ब्रायोफाइटा, जिनमें मॉसिस है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, मतलब क्रिप्टोगैम्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन पाइनोफाइटा, एंड अलग से नाम दे दिया गया है। दिस इज ए न्यू नेम, जिसमें बेसिकली पाइनस मतलब कॉनिफर्स आते हैं, जिंगोफाइटा, गिंगो, सैकिडोफाइटा, साइके, देन नीटोफाइटा। उसके बाद क्रिप्टोगैम्स के बाद फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको फेनरोगैम्स कहा जाता है या स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया है, और इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनको मैग्नोलियोफाइटा में रखा गया है, क्योंकि उनमें पुष्प बनते हैं और ऊपर वालों में, इनमें किसी में पुष्प नहीं बनते, जिसको फिर डिवाइड किया गया क्लास में मैग्नोलियोप्सिडा, दैट इज डाइकोटिलिडेंस, लिलियोप्सिडा, दैट मोनोकोटिलिडेंस। सो अभी मैंने आपको बताया कि फेनरोगैम्स को हम स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं, क्योंकि इनमें सीड बनते हैं। फिर हम स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीडेड प्लांट्स को आगे डिवाइड करते हैं दो में। एक है एंजियोस्पर्म्स, उनमें भी सीड बनते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी सीड बनते हैं। एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड सीड बनते हैं और जिम्नोस्पर्म में अनकवर्ड बनते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीड फॉर्मेशन। Then angiosperms is further divided into dicots and monocots. Dicots such as Euphorbiaceae, Solanaceae, Leguminosae, Cruciferae. मोनोकॉट्स में पामी, ग्रेमिनी, इनके कुछ फैमिलीज के नाम बदल गए हैं। मैंने बताया भी था कि 8 फैमिलीज के नाम बनते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉमन सफिक्स। यदि सारी फैमिली के सफिक्स AC होना चाहिए लास्ट में, तो जिनका AC नहीं था उन 8 फैमिलीज के नामों को बदल दिया गया।
अब जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, बनाना, केला का क्लासिफिकेशन कैसे हम करेंगे? किंगडम प्लांटी, डिवीजन, मैग्नोलियोफाइटा या स्पर्मेटोफाइटा, क्लास लिलियोप्सिडा क्योंकि ये मोनिकॉट है, ऑर्डर जिंजीबेरेल्स, फैमिली म्यूसेस, जीनस म्यूसा और स्पीसीज एक्यूमेनेटा। Ending of each taxon for the identification of the classification level, excluding kingdom, genus and species. डिवीजन के आगे हमेशा हम लिखते हैं फाइटा, क्लास के आगे ऑप्सिडा या ई, ऑर्डर के आगे एल्स लगाते हैं हमेशा। इसी तरह फैमिली के अंत में मतलब सफिक्स हम एसी लगाएंगे, और जहां एसी नहीं होगा तो वही 8 फैमिलीज के नाम बदले गए हैं। सब फैमिलीज बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सब फैमिलीज की कोई बात नहीं करेंगे। इसी तरह सब एंड सुपर कैटेगरीज में भी कई बार ट्रीट करते हैं हम लोग। दैट इज देयर आर इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज जैसे सब स्पीसीज, वेराइटी, सब वेराइटी, फॉर्म एंड सब फॉर्म। मतलब स्पीसीज के बाद भी कुछ हद तक ये चीजें इस्तेमाल होती हैं क्लासिफिकेशन में। जैसे कल्टीवार, तो कल्टीवार का मतलब कल्टीवेटेड वेराइटी, पौधे की वो वेराइटी जो विशेष रूप से कल्टीवेट की जाती है किसी वजह से, चाहे वो सीरियल्स की वजह से, वेजिटेबल्स की वजह से, फ्रूट्स की वजह से। इसी तरह एक टर्म और यूज होता है टैक्सोनॉमी में, क्लोन। तो क्लोन तो एक तरह से रिफर्स टू ए यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, टैक्सोनॉमी की बात हो रही है, हैविंग आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट, है ना, जिससे उसकी कटिंग बनाई गई है, प्रोड्यूस्ड आइदर एसेक्सुअली और नेचुरली। तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। नाउ कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये थोड़ा सा सिलेबस से हटके है, बस बेसिकली आपको थोड़ा बस एक आइडिया लेना है। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट क्या होता है? स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वैरायटी तो बाद में आती है, लेकिन स्पीसीज को सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप माना जाता है, which can be consistently differentiated using morphological characteristics. जैसे फॉर एग्जाम्पल जीनस तो बहुत सारी होंगी, लेकिन वेरिएशन कहाँ पे होगा? स्पीसीज का होगा। जैसे सोलोनेसिक मैंने आपको बताया, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, एक आलू है, दूसरा टमाटर है। तो ये जो डिफरेंस है, द कंसेप्ट इज वाइडली यूज्ड अमंग टैक्सोनॉमिस्ट एंड इट इज मोस्ट प्रैक्टिकल। तो ये सारी क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले तमाम बेसिक बातें हैं। Now, biological species concept using reproductive biology, population group which is able to breed but prevented from gene exchange with population of other species, cannot be used for self-pollinated species or sexually produced species. अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, दैट इज क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो सबसे पहले ये चीजें थोड़ा बहुत पहले वाले लेक्चर में भी आ चुकी हैं, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम्स। आपके सिलेबस में आर्टिफिशियल सिस्टम एक ही है, कैलर्स लिनियस का, which is based on growth habits and uses, a primitive system जो थियोफ्रस्टस ने सबसे पहले दिया था, और बाद में चल के फिर जो इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिस्टम है नंबर ऑफ स्टेमन्स के आधार पे, उसको सेक्सुअल सिस्टम भी कहा गया, वो कैलर्स लिनियस का है। Then mechanical system based on one or a few chosen characteristics. तो कुछ हद तक लिनियस के सिस्टम को आर्टिफिशियल मानकर भी उसको मैकेनिकल माना गया है।
उसके बाद बेंथमन होकर का सिस्टम, जिसको बेसिकली नेचुरल सिस्टम कहते हैं, बेस्ड ऑन मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हैबिट, हैबिटेट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, सारे कैरेक्टर्स को लेते हुए how ये सब बेस्ड है। और 4 टाइप है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिनको इवोल्यूशनरी सिस्टम भी कहा जाता है, जो बेंथमन होकर के तमाम बेस्ड ऑन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उसमें इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को भी जोड़ दिया गया है। एंगरर एंड पेंटल, हचिंसन, तख्ताजान, कर्नक्विस्ट, यही आपके सिलेबस में है। अब आता है नोमेनक्लेचर, क्योंकि कुछ कुछ बातें रिपीट होंगी। Nomenclature is important in order to provide the correct name of a plant या for a plant. The naming activity is under the control of the International Code of Botanical Nomenclature, published by the International Association of Plant Taxonomy, IAPT. The codes are revised every Congress, International Congress, है ना, जैसे इसका वर्णन पहले आ चुका है, हिस्टोरिकल अकाउंट जो मैंने आपको बताया था। Scientific name is based on the binomial system popularized by Carolus Linnaeus in 1753, which is consist of genus and species. The third element is the name of the person who formally gave the name, that is name of the author. या name of the author थी, जैसे Oryza sativa, ये चावल का नाम है। L Linnaeus से लिया गया है, उनके ऑनर में ये ऑथरिटी का नेम है। LIN भी लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो दोनों ये ठीक है, पद्धति ठीक है। इसी तरह सब स्पीसीज को लिखेंगे ओराइजा सटाइवा सब स्पीसीज इंडिका, ओराइजा सटाइवा सब स्पीसीज जेपोनिका, ये ट्राइनोमियल सिस्टम कहलाएगा। कहीं कहीं कुछ केसेस में हम सब स्पीसीज के साथ वैरायटी भी जोड़ देते हैं, तो वो क्वाड्रिनोमियल कहलाता है। दिस इज नॉट सो कॉमन। इसमें 4 चीजें इंक्लूड हैं, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, एंड फोर्थ वन इज नेम ऑफ द वैरायटी। इसी तरह पॉपुलस एल्बा, पॉपुलस cornuta-forma, name of genera and that of the higher taxon. Then cultivars को भी यूज करते हैं, cultivated varieties को भी यूज करते हैं कहीं कहीं हम लोग। For species that have been named earlier, it is adequate to name the species from then on using only the first letter. जैसे हमें शॉर्ट में लिखना है, पहली बार लिखेंगे पूरा, यदि वही नाम दोबारा आता है तो फिर हम उसको जीनस को शॉर्ट में लिख देंगे। सोलेनम मेलेंजिना, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार लिखना है तो हम उसको एस मेलेंजिना लिखेंगे। For a specific name consisting of 2 words, a hyphen is needed between the 2 words, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हाइफन लगाएंगे। ठीक है। और एक बात बहुत जरूरी है कि साइंटिफिक नेम्स को हम इटैलिक्स में लिखा जाता है हमेशा, या अंडरलाइन किया जाता है। When 2 or more authors suggest a scientific name, their names are linked. तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आपका एट लिख के, मतलब हुक ने भी नाम दिया और थॉमसन ने भी नाम दिया, तो बीच में क्या करते हैं, एट लिख दिया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। नेम्स ऑफ द हाइब्रिड, अब कई बार हम क्या करते हैं, संकर प्रजाति के पौधे बनाते हैं, और हाइब्रिड बेसिकली वो हाइब्रिड जो कि इंटरजेनरिक बनाए गए, 2 जीनस के बीच में आपके क्रॉस करा के, तो वहां पे ये थोड़ी दिक्कत आती है कि हम क्या नाम रखेंगे। जैसे एग्रोस्टिस, ये भी जीनस है, दिस इज पॉलीपोगॉन। ठीक, इसी तरह सेलिक्स और रोजा के बीच में हाइब्रिड है, तो उसमें जनरली किया क्या जाता है कि दोनों जीनस के नाम को लगभग आधा आधा आपका जोड़ दिया जाता है। अब
मॉडर्न टेक्सोनॉमी में जैसे बेंथामन, होकर, थियोफ्रास्टस, लिनियस, बाद में भी कुछ फाइलोलॉजी सिस्टम आए, कंक्रिस्ट वगैरह का, उन्होंने कुछ बॉटनी की तमाम शाखाओं को इंक्लूड किया है अपने क्लासिफिकेशन में। मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के अलावा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्लस एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, इसमें जाइलम, ट्राइकोम्स, स्टोमेटा, देन पेलिनोलॉजी मतलब पॉलिन ग्रेन्स, परागकणों से संबंधित भी होती है। ये बेसिकली मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहलाती है। साथ के साथ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब है क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड हैबिट। देन केमिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स, जैसे हर फैमिली में अपने अपने खास केमिकल पाए जाते हैं, जैसे एल्कलॉइड्स का पाया जाना, फेनोलिक कंपाउंड्स का पाया जाना, एमिनो एसिड्स कंटेंट्स का, प्रोटीन, एंजाइम्स एंड आल्सो द डीएनए। इवन डीएनए और आरएनए हाइब्रिडाइजेशन को भी इंक्लूड किया गया है मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में। So this is about a general aspect about the botanical garden and plant classification.